फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम है राजेश पिलानिया। आई एम ए प्रोफेसर विद एमडीआई गुड़गांव। From last 25 years I am working in strategy and innovation, and from last 15 years I am working in happiness. I've written 12 books. So now I'm traveling all around India, sharing what I know about happiness for free, and trying to also learn about happiness from different states. So I came to Arunachal on Tuesday. My first stop was Namsai. There I went to uh, University, Arunachal Pradesh University, private university. Then I went to Buddhi College, and then DC office, Namsai. There I conducted workshops on happiness. Second stop was Tezu. I did workshop in SP office Tezu, and on AIR radio, and a government college school. Next stop was Rowing. I conducted a workshop in SP office. Then Pasigat. In Pasigat, I met the DC and conducted a workshop in the College of Agriculture and Forestry, and also a recording on AIR. Now it's called Akashwani Pasigat. I came to Itanagar on Saturday evening. Sunday I met some journalists and tried to learn about happiness in Arunachal Pradesh. Today morning I first went to Rajiv Gandhi University, delivered a workshop there. Then there was a recording at Akashwani Itanagar. And now I came to DIPR. I am thankful to DIPR director, secretary, deputy director for arranging this, and for media for coming for this. So this is what I am trying to do in Arunachal, and I am doing the same thing all around India. I am trying to share what I know for free, because I believe happiness is a very essential thing. I think happiness is like oxygen. With happiness, we can have better health, we can have better relationship, we can have better work, and these are the top 3 priorities for everyone. Now, the question was happiness and health. So, what research shows is when we are happy, we have less stress. These days, the biggest silent killer is stress. That's what WHO says. And with happiness, we can reduce stress. And why stress is harmful for us? As I was sharing earlier, that with stress, we have a risk of cutting down on our telomeres, and telomeres are required to produce new cells, and new cells are required for disease, fighting disease, longevity, for looking good. So with happiness, we can reduce stress to a large extent, and we can be more healthy, because stress is one of the main reason for lot of problems in our health these days. सर आपके लिए हैप्पीनेस का मंत्र क्या है? और अभी तक हम लोग का जितना भी व्यूअर्स देख रहा होगा शायद सबका अरुणाचली भाषा में बोला जाए, सबका टेंशन बहुत है। तो डेली लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं इतना टेंशन का बाद भी? डेली लाइफ में इसलिए खुश रहना चाहिए कि हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा काम। ये सबका प्रायोरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ अस का, राइट? और इन तीनों चीज़ों में हैप्पीनेस बहुत अच्छा काम करती है। तो हमें ये नहीं सोचना कि हैप्पीनेस एक अच्छी चीज़ है, हमें ये सोचना है कि हैप्पीनेस एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारे रिश्ते बेहतर रहते हैं और हमारा काम अच्छा रहता है। काम अच्छा कैसे रहता है? जब हम हैप्पी रहते हैं, रिसर्च शोज वी आर मोर प्रोडक्टिव, मोर इनोवेटिव, हमारा काम अच्छा रहता है। रिसर्च शोज व्हेन वी आर हैप्पी वी हैव लेस स्ट्रेस, सो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। एंड रिसर्च शोज व्हेन वी आर हैप्पी वी टॉक नाइसली, वी गिव मोर टाइम, वी गिव मोर रिस्पेक्ट, वी गिव मोर केयर, सो रिलेशनशिप आल्सो बेटर। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए चॉइस। अगर जिंदगी में अच्छी सेहत चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए और अच्छा काम चाहिए, तो हैप्पीनेस एक रामबाण है। इसलिए हैप्पीनेस सबको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए। जी, अगर आपसे सीखना चाहें तो अरुणाचल में आप कैसे करते हैं? उन लोगों को क्लासेस देने के लिए कोशिश करिए, और कैसे आप आपको कॉन्टेक्ट? मेरा नाम राजेश पिलानिया है, आप गूगल कर लीजिए। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक है। वहाँ पे आप काफ़ी आपको वीडियोज़ मिलेंगे, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या कोई एनजीओ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और हम फ्री ऑनलाइन सेशन आपके लिए कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल सवाल है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं rajesh@planet.org। बट बिफोर दैट आप मेरी वीडियो ही देख लीजिए, काफ़ी सवालों का जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा, और मैं जनरली 15 दिन में रिप्लाई करता हूँ हर एक ईमेल का। देखिए, बहुत सारे मेथड और एक्सरसाइजेज हैं इसमें। आप ज़्यादा हंस सकते हैं, हंसने से हैप्पीनेस बढ़ता है। कैसे? बिकॉज व्हेन वी लाफ, एक
हार्मोन है, हैप्पीनेस हार्मोन हमारे ब्रेन में, इंडोर्फिन वो रिलीज होता है एंड वी फील बेटर। सो लाफ्टर इज वन। आप गूगल करके देख लीजिए लाफ्टर योगा पे आपको कैसे कैसे हंसना है, आप बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा, आजकल एक तमन्ना भाटिया जी का सॉन्ग बहुत पॉपुलर चल रहा है, आज की रात। उसमें वो सिखाना चाह रही हैं कि वक्त बर्बाद मत कीजिए बेकार की बातों में। तो हमें अपनी लाइफ में देखना है कि हमें खुशी कहाँ मिलती है। खुशी का मतलब है कि लाइफ में राइट पर्पज हो, राइट प्लेजर हो और एक सोशल सर्विस हो। तो अपना जो टाइम है हमें इन चीज़ों में लगाना है कि एक राइट पर्पज, एक राइट प्लेजर और सोशल सर्विस में। नॉट ओनली टाइम बट हमारी एनर्जी और टेंशन भी। हमारे अरुणाचल में तो हमारी जो चाय है, जो टी है, उसको ढंग से पीना है। टी मीन्स टाइम, एनर्जी, अटेंशन। अगर इसको हम वेस्ट ना करें, जो हमें तमन्ना भाटिया जी सिखाना चाह रही है उस सॉन्ग में, वो सिर्फ टाइम के बारे में बात कर रही है, हम बात कर रहे हैं एनर्जी और टेंशन के बारे में भी। तो अगर हम अपना हैप्पीनेस डिफाइन कर लें और अपना जो टी है ढंग से पिए, वहाँ लगाएं जहाँ से हमें राइट पर्पज, राइट प्लेजर और सोशल सर्विस मिल रही है, तो हम खुश होंगे। ये दूसरा तरीका है। तीसरा ये है कि हम आमिर खान साहब से भी सीख सकते हैं। उन्होंने लगान में बताया है कि जो क्रिकेट है वो गुल्ली डंडा की तरह आसान है। तो हमें हैप्पीनेस को एक बहुत ही आसान चीज़ समझना है। हमारा ब्रेन आसान चीज़ों को जल्दी करता है, डिफिकल्ट चीज़ों को पोस्टपोन करता है। तो ये एक और तरीका है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। आप एक काम कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले आप गूगल कर लीजिए कि कौन कौन से हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं। डोपामिन है, इंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है और सेरोटोनिन है। आप ये भी गूगल कर लीजिए कि इनको रिलीज करने के कौन कौन से तरीके हैं और उसमें से आपको जो सूट करे आप वो कर लीजिए। एक और तरीका है। उसके बाद में हर कोई डिफरेंट है, तो किसी को मेडिटेशन करना अच्छा लगता है मेडिटेशन कर ले, किसी को डांस अच्छा लगता है वो डांस कर ले, किसी को बच्चे के साथ खेलना अच्छा लगता है वो कर ले। और ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम खुश रह सकते हैं। और ज़्यादा जानना है तो आप मेरे वीडियो ही देखिए, आप मुझे ईमेल कीजिए। सर, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में आपका क्या राय है? क्योंकि कुछ साल पहले, 5 साल पहले का जो डेटा है, 114 रैंक में आया था इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स। तो उसका ऊपर में आपका क्या राय है कि देखिए, बात ऐसी है कि हैप्पीनेस एज ए सब्जेक्ट ये तो सेंचुरीज ओल्ड है। ऋग्वेद से और डिफरेंट कंट्रीज में ये इस पे बातें होती थी, लेकिन इसमें जो साइंटिफिक रिसर्च है वो अराउंड 40 साल पुरानी है। इट्स ए वेरी यंग फील्ड। पैसे के बाद जो कॉन्सेप्ट है कितना पुराना है, लेकिन अभी हम पैसे को मिसमैनेज करते हैं। हैप्पीनेस तो अभी बहुत 40 साल पुरानी रिसर्च है। तो इसमें कुछ अच्छे काम हुए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हुए हैं, हाउ टू मेजर इट, बट अभी भी एक परफेक्ट साइंस नहीं है। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इट्स ए गुड आइडिया, बट आई डोंट एग्री विद इट्स फाइंडिंग ऑन इंडिया। मुझे लगता है कि इंडिया उससे ज़्यादा खुश है जितना कि रिपोर्ट में पाया गया है। दो मेन रीजन की वजह से। पहला ये कि जो दुनिया में जो सबसे बड़ी रिसर्च हुई है, चल रही है, लंबी रिसर्च चल रही है दुनिया में, वो हार्वर्ड में चल रही है पिछले 80 साल से। उन्होंने ये पाया कि जो लोग लंबा जीते हैं, हैप्पी जीते हैं, उनका मेन रीजन है रिलेशनशिप। और इंडिया में आप देखेंगे चारों तरफ रिश्ते अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हैप्पीनेस का मेन सोर्स रिलेशनशिप है और हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि इंडिया इज ए मच हैप्पियर कंट्री। और दूसरा ये है कि इंडिया में अभी भी भगवान में बहुत विश्वास है लोगों का। वो कैसे हेल्प करता है? जिंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं। तो जिंदगी हमारी मर्जी से नहीं चल रही और हमारा भगवान में विश्वास है, तो एक हम शांति दे लेते हैं, अपना तसल्ली दे लेते हैं कि ठीक है, अभी मेरा टाइम खराब है, भगवान मेरी देखभाल करेगा, भगवान मुझे अच्छा टाइम भी दिखाएगा। तो ये दोनों चीजें इंडिया में इतनी स्ट्रॉन्ग है, रिलेशंस एंड बिलीफ इन गॉड। आई थिंक इंडिया इज मच मोर हैप्पियर देन इट्स शोन इन द रिपोर्ट। बट आई वुड लाइक टू से रिपोर्ट इज ए गुड इनिशिएटिव, but it needs to improve further with time. Okay, so there are two things. Yeah. One is about the study at Harvard, which shows that relationships are the main source of happiness, right? Second, relationship in India. Relationship doesn't mean only the relationship between husband and wife. Relationship, yeah, so relationship means like different kind of relationship in the family, siblings, kids and parents, friends. So I have observed that relationship in India are still strong. Okay, you can say historically they used to be stronger. Now maybe they are becoming slightly weaker. But even then, as compared to many other countries, I still find the relationships are strong. Okay, that is one part. Let's look at the other part. How can we improve relationships? Let's look at the solution part. And for solution, if you look at relationships need more time, more energy, more attention. अगर आप कभी भी किसी कपल की लड़ाई सुनेंगे, जनरली उसमें एक कॉमन चीज होता है कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, आप बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो वन थिंग इज वी नीड टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग रिलेशनशिप्स एंड गिव मोर टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन टू रिलेशनशिप। वो कैसे करें? हम कुछ साथ में चीजें करना शुरू करें एज ए फैमिली और एज ए कपल, कि कहीं जाएं, अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके अपनी जेब में रखें
और पूरा ध्यान अटेंशन उस पर्टिकुलर पर्सन पे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे लगाएं। ये एक तरीका है। दूसरा ये है, हम लोगों को यही मानना पड़ेगा कि हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं एंड वी आर नॉट परफेक्ट। तो दूसरे आदमी इंसान से गलती होगी, तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमने दूसरे इंसान को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। कोई बात नहीं, गलती हो गई, इंसान है, लेट्स गिव दैट पर्सन ए चांस टू इम्प्रूव। एंड इफ यू डू लाइक दिस, समटाइम्स माफ कर दो, यू कैन कीप बिल्डिंग ऑन रिलेशनशिप्स, राइट? दीज आर टू इजी वे to improve relationships.